اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں پاکستان کی ایک اور بڑی باہمت اور مضبوط خاتون سے، اور مضبوط اس لیے کہ یہ صرف خود ہی مضبوط نہیں ہے بلکہ ان کا کام ساری زندگی یہ رہا ہے کہ یہ دیگر اپنے ساتھ جو خواتین ہیں، اپنے آس پاس رہنے والی بچیاں، ان کو بھی مضبوط بنائیں۔ خویندو کور ان کا ایک انیشیٹو تھا۔ خویندو کور پشتو کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے بہنوں کا گھر، وہ انہوں نے یہ اس کی بانی ہے۔ بالکل، اور جب انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا، جن جگہوں پر کیا، جن علاقوں میں کیا، وہ ایسے علاقے تھے کہ جہاں پر یہ کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وزیرستان، جی بالکل بالکل، فارمر فاٹا جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو مانا جاتا ہے کہ کنزرویٹو علاقہ ہے، بچیاں جو ہیں وہ ایک حد تک تو اسکول جاتی ہیں لیکن اس کے بعد پھر یا شادی ہو جاتی ہے یا ان کے فیصلوں میں کہتے ہیں کہ گھروں کے مردوں کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے اور بچی اپنا فیصلہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو تعلیم کی جو دولت ہے اس سے وہ آراستہ نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو اپنے کام کو اس تک محنت سے کیا کہ ان کے کام کو مختلف فورمز پر سراہا گیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، ILO ایوارڈ ملا انہیں، بے نظیر ایوارڈ ملا انہیں، فاطمہ جناح صاحبہ کا جو ایوارڈ ہے وہ بھی ملا، پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی UN ایوارڈ ملا، اور جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ امن کے نوبیل انعام کے لیے بھی نامزد ہوئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم بی بی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مریم بی بی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا۔ خویندو کور تو آپ زبردست چلا رہی ہیں، کیا کمال آپ نے انیشیٹو لیا۔ اس کا ذرا ہمیں کہانی تو سنائیں، اس کے آغاز کہ یہ کیسے آپ نے انیشیٹو لیا، اور جہاں آپ موجود تھیں وہاں پر تو یہ رواج ہی نہیں تھا، تو کیسے آپ نے اس کو؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ذاتی جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ذاتی جو تجربات ہوتے ہیں، وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، اور وہی آپ کو یہ حوصلہ بھی دیتے ہیں کہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، تھوڑا بہت اوروں کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ تو میں، جیسے آپ نے کہا، میں جس علاقے کی رہنے والی ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ توفیق دی کہ شہروں میں بھی آئی، باہر ملکوں کا بھی ملا، تو لیکن جب اپنے علاقوں میں دیکھتی تھی خواتین کو اور بچیوں کی، تو وہاں بھی بہت فرق تھا۔ تو یہ تھا کہ جب موقع ملا تو کیوں نہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے جس علاقے سے میرا تعلق ہے اور وہاں کی خواتین، میں بھی اسی علاقے کی ہوں، کوئی میری سینگ نہیں ہے، لیکن جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی بہت زیادہ رسول ہے، تو آپ تھوڑا سا انالیسس کرتے ہو۔ تعلیم جو ہے اس کی وجہ سے اور تھوڑا ایکسپوجر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ یہ مقام جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو وہاں پہ تعلیم کی بہت زیادہ، یعنی لٹریسی ریٹ بہت کم ہے ہمارے فاٹا میں۔ پہلے جو فاٹا تھا اب تو مرج ڈسٹرکٹ ہو گئے، تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے تعلیم کے اوپر ہی کام کیا۔ تو وہاں پر کیسا ریئیکشن آیا لوگوں کا؟ یہی ہے کہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی، ریئیکشن آپ لرن کر رہے ہوتے، ساری زندگی لرن کر رہے ہوتے، تو ازمپشن یہ تھی کہ یہ تعلیم تو کوئی کنٹروورسل بات، مشکل ہے ہی نہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ مسائل آئے اور شدید مسائل آئے۔ کوئی جرگہ بیٹھا آپ کے خلاف، کوئی اس وقت گاؤں کی پنچایت بیٹھی، کچھ ہوا ایسا؟ بہت زیادہ مسائل آئے، اسی جو آپ بتا رہی ہیں۔ تو آپ کو پھر اپنے گھر والوں نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑو کس مسئلے میں پڑی ہوئی ہو اور بس چھوڑ دو، اگر وہ نہیں چاہتے گاؤں والے کہ ان کی بچیاں پڑھیں تو چھوڑ دو؟ گھر والے بھی بہت زیادہ، ان کو جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اوہ ہو یہ تو بدنامی ہوگی، اوہ ہو یہ تو ہماری جو ہے عزت، ہماری جو ہے عزت خاتمہ، ہاں، اور یہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ جو ہے آنر کے جو ایشوز ہیں، یہ سب بہت زیادہ، تو اپنی فیملی میں بھی لوگوں کے بہت زیادہ مسائل تھے اور انہوں نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ جس وقت آپ سمجھتے ہو آپ کے دل کے اندر جو آواز ہوتی ہے نا، وہ بہت ضروری ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو ہے کام غلط نہیں ہے اور جو ہمارے دین کے مطابق بھی غلط نہیں ہے، اور پھر آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہو، ان کے ساتھ، بجائے اس کے کہ آپ ریٹیلیٹ کرو، بجائے اس کے کہ آپ ان کو یعنی اس کے طریقے سے ریئیکٹ کرو کہ ان کو اور زیادہ غصہ آئے اور وہ اور زیادہ خوف میں مبتلا ہوں، اور زیادہ۔ جو آپ نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں جو دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دو فن ہیں یا یوں کہیں دو گر ہیں جو آپ ہمیں سکھائیں، ٹھیک ہے جی؟ پہلا تو آپ نے یہ سکھانا ہے کہ آپ ایک اتنے مشکل انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہیں، مخالفت بہت زیادہ ہے، وہ جو جذبہ ہوتا ہے وہ کیسے آتا ہے کہ نہیں مجھے کرتے ہی رہنا ہے یہ، اور اس میں آپ کو کس نے سپورٹ کیا وہ بھی بتائیے گا، لیکن وہ جذبہ کیسے لائیں؟ ہم تو ہمت ہار جاتے ہیں اکثر۔ دیکھیے،
आप ज़िंदगी में आपका पर्सपेक्टिव क्या है। मुश्किलात तो हर किसी की ज़िंदगी में भी, चाहे आप बहुत सक्सेसफुल हैं चाहे आम लोग हैं, हर एक की ज़िंदगी में मुश्किलात होते हैं। आप देखते हो कि मुश्किलात के साथ साथ अच्छाइयाँ कहाँ पर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं, जो है रोशनी कहाँ पर है। वो जो है अगर आप देखें तो मुश्किलात होते हैं, लेकिन आप क्योंकि सब लोग तो बुरे नहीं होते। मैं समझती हूँ कि हर जगह अच्छे लोग होते हैं और लोग आमतौर पे अच्छे ही होते हैं मेरी नज़र में। जो उनको सिर्फ गलतफहमी होती है जो कि दूर करनी होती है आपने किसी की गलतफहमी। उसको जो है वो साथ लेकर चलने का जो है ना, वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा खान साहब का एडवाइजर होना चाहिए ज़रूरत है वल्ला कि ये जो लोगों को साथ लेके चलने वाली बात है, उनके साथ मुशीरों और वजीरों को भी समझ में नहीं आ रही है। अगली चीज आपको समझ में आ गई है। ये वाला फन कैसे इंसान अपने अंदर पैदा कर सकता है कि मुखालिफिन को भी साथ ले चले। सबसे पहले ये था कि क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे शोहर जो थे वो ज़हनी बीमार थे, तो मुझे शदीद ज़रूरत थी। जैसे मैंने कहा कि ज़ाती जो तजर्बात हैं वो आपको फैसला करने में, जो आपके तजर्बात होते हैं, जो आप जिन चीज़ों से आप गुज़र रहे होते हैं, वो आपको फैसले भी करवाते हैं हालात जी। ठीक है, तो उन हालात में मैंने ये कहा कि मुझे बाहर निकलना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा मुखालफत थी और जिस किस्म के फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था, कबायली वग़ैरह वग़ैरह, तो लेकिन जब मैं निकली तो मैंने मेरी अपनी वालदा बहुत मुखालफत करती थी। वो क्योंकि उन्हें पढ़ी लिखी नहीं थी, गाँव का वो था। हाँ, वो समझती थी कि अगर मेरी बेटियां पढ़ लिख जाएंगी तो वो कैसे जंगल से, वो तो बड़ी नाजुक हो जाएंगी, वो जंगल से लकड़ी कैसे तोड़ के लाएंगी, पानी कैसे भर के लाएंगी ना, तो इनको पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, इनको मजबूत होना चाहिए। तो वो बड़ा मुखालफत करती थी और वो जिन मौलवी साहब से मुतासिर थी, तो मौलवी साहब ने ये कहा कि गुनाह है, औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए और जो औरत की जो कमाई है वो हराम है। अच्छा, अब ये वो मौलवी साहब हैं जो ये दीन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एग्जाम्पल शायद नहीं पता, या इल्म हासिल करने को मुसलमान मर्द और औरत दोनों पे फ़र्ज़ किया, ये नहीं पता उन्हें। नहीं पता। तो फिर मेरी वालदा का यही आर्गूमेंट था कि वो बदनामी हो जाएगी, ऑनर के बड़े इशू हैं और भाई बदनाम हो जाएंगे, आपके वालिद और आपके जो जेठ हैं, सबके लिए, पूरे ख़ानदान के लिए बदनामी होगी, तो आप नहीं निकल सकती। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं ख़ुद थोड़ा सा इस्लाम की स्टडी करूं। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जवाब भी तो देना है ना, अगलों को मनाना है। खुशकिस्मती तो मेरी ये थी कि उस इलाके में रहते हुए मेरे वालिद ने बेटियों को पढ़ाया, तो सारा क्रेडिट तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, सारा क्रेडिट तो उनको जाता है कि उन्होंने बेटियों को पढ़ाया। तो मैंने जब थोड़ा ख़ुद पढ़ना शुरू किया और मौलवी साहब के साथ थोड़ी सी खुद भी आर्गूमेंट की, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि कहाँ नहीं, वो तालीम तो आप कर सकते हो लेकिन नौकरी नहीं कर सकते। फिर मैंने जब कहा कि बीबी खतीजा तो बहुत बड़ी बिजनेस वो थी, खातून थी, उससे फिर वो मौलवी साहब वो हो गए और उन्होंने ये कहा कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन यह है कि ख़ानदान का ख्याल रखना चाहिए और अगर ख़ानदान जो है ये कह रहा है कि आप मत निकलो तो फिर आप मत निकलो। तो फिर अब उनके पास आर्गूमेंट तो खत्म हो गया ना फिर। तो उसके बाद थोड़ा आप बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट आपको, आप थोड़ा स्पेस दोगे। लिसनिंग जो है ना, सुनना बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि हर एक मेरी नज़र में सही बात कर रहा होता है, इसलिए उसके अपने तजर्बात होते हैं। तो आपको जो है सुनना पड़ता है और थोड़ा सा उनको जो है वो कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत होती है। तो ये प्रोसेस होता है और जैसे मैंने कहा कि लर्निंग जो है वो सारी उम्र चल रही होती है। तो उससे ये हुआ कि फिर अपने ख़ानदान में, क्योंकि मर्दों के साथ हमारा ऐसा माहौल था कि आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो मैंने उनकी बीवियाँ भाभियाँ उनको करना, उनको उकसाना शुरू किया ये करो। और मेरी बहन डॉक्टर हो गई। अब बड़ी कंट्राडिक्शन थी, तो उसको सब बड़ा वो डॉक्टर हो गई, बड़ा फखर वगैरह वगैरह। अच्छा, एक तरफ पढ़ाई से रोकते हैं, दूसरी तरफ उसी औरत को डॉक्टर बन जाए तो सेलिब्रेट करते हैं। तो वो जो है वो मेरी साथी बन गई, उसने कहा बस ठीक है। तो इस तरह करके वो जो स्ट्रगल है वो हुई और आखिर में फिर मैं थोड़ा सा, मेरी उम्र भी बढ़ गई, तो वो जो फियर था कि मैं बहुत ज़्यादा बेइज्जती लाऊंगी, ऑनर की इशू लाऊंगी, वो भी थोड़ा एड्रेस हो गया कि अब थोड़ा बूढ़ी हो गई है तो तो अब कोई मसला, जवानों से ज्यादा जवान है आपके कामों को अगर अब ये कहानी उस तरफ जा रही है नाजरीन, जो एंगल हम हाईलाइट करना चाहते थे कि उम्र का भी कोई वो नहीं है, उम्र आपके जहन में होती है, उम्र में आप कुछ भी कर सकते हैं। अब तो हम डॉक्टर मरियम बीबी कहेंगे अब
बताएंगे लोगों को? वो भी बताइए कि कौन सी उम्र में आप गई? ये वो जैसे मैंने कहा कि लर्निंग सारा चल, तो फिर ये कि जैसे आप है मुखालफत तो बहुत ज़्यादा थी, तो जिस वक्त मुझे कोई 6-7 मरतबा मैंने कोशिश की, टीचिंग की भी की, घर के अंदर पढ़ाने की भी की, बहुत ज़्यादा कोशिश की जो नाकाम रही, क्योंकि मेरे अपने वालिदैन आ जाते थे कि हमारे लिए बड़ी बदनामी है, आपके इन लॉज के लिए बड़ी बदनामी है। बहरहाल शॉर्ट एंड द लॉन्ग जब मौका मिल गया तो जब बाहर निकली तो मैंने कहा मैं तो बहुत अच्छी, मेरी तो बड़ी अच्छी हालत है, क्योंकि मैं तो बड़ा तालीम याफ्ता हूँ और मैं जिस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है तो वो आप समझ सकते को अच्छा जाके पढ़े लिखे थे। तो बाहर का मैंने देखा तो मैंने कहा ओहो ये तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तालीम के ऊपर भी ज़रूरत है। अगर मैं तालीम याफ्ता थी लेकिन मेरे हाथ में इनकम नहीं थी तो मेरे एम्पावरमेंट का कमी थी। फिर जब मैंने उनको देखा कि सेहत का भी, अगर सेहत आपकी ठीक नहीं है, अगर आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास अपनी इनकम नहीं है, तो एम्पावरमेंट नहीं हो सकती। अब आपका इदारा जो है वो कहाँ पर क्या काम कर रहा है, थोड़ा सा वो भी हमें बताएं। हाँ, जैसे मैंने ये कहा कि हमारा इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच है। हम एक गांव में जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप काम कर रहे होते हैं लेकिन आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, आप कैसे बात करते हो। मैं हमेशा मैं मिसाल देती हूँ कि आप कैसे कहते हो बंद करो ये दरवाज़ा, लेकिन आप कैसे कहते हो मेहरबानी करके दरवाज़ा बंद। सो इट्स लाइक हाउ यू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने लर्न किया। तो लोगों के जो फियर थे, खौफ थे, उनको एड्रेस करना तो लंबा प्रोसेस होता है। बाहर जो आप पढ़ने गई वो भी जरा बताएं किस एज में गई थी? आप तो दादी नानी बन चुकी थी। मैं तो काम कर रही थी। तो उसमें ये था कि मैं जब हम निकले तो मैंने सिर्फ BA किया हुआ था। तो लेकिन प्रोफेशनली थोड़ा सा मुझे बहुत मेहनत करके तो अपने लिए अपने इदारे में सेफ स्पेस क्रिएट की। तो उसमें ये था कि बहुत ज़्यादा मुखालफत मर्दों की तरफ से आ गई कि ये अंगूठा छाप मैनेजर है। मेरा टाइटल ही अंगूठा छाप हो गया था, इसलिए कि वो जो और लोग थे काफ़ी जो मर्द थे, वो कोई इंजीनियर था, कोई बाहर का पढ़ा हुआ था, तो मेरे पे ठप्पा हो गया कि अंगूठा छाप मैनेजर है। तो मैंने फिर उसको एज ए चैलेंज लिया। मैंने कहा कि इस तरह आप तो ऐसी की तैसी। अब मैं बताती हूँ कि तो उसमें मैं अप्लाई करती गई तो एन मेरी शिमिल स्कॉलरशिप है, तो उसके लिए फिर मैंने अप्लाई किया। तो 1 साल नहीं मिला कि वो मेरी एज ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा हमारे काम की वजह से बहुत ज़्यादा उन्होंने फिर वो किया। तो मैंने सोशल वर्क ही एज ए सब्जेक्ट चूज़ किया और मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में एडमिशन मिल गया। तो वहाँ पे और करने आप MPhil गई थी और उन्होंने आपके काम को देखते हुए आपको डॉक्टरेट की ऑनररी डिग्री दे दी। बिल्कुल, क्योंकि मेरी जो थीसिस थी वो एक्शन रिसर्च था। अब इसके बाद कोई सवाल भी नहीं रह जाता ना कि कोई आपसे हम पूछे। मतलब ऐसी आपकी ज़बरदस्त प्रोफाइल है कि लोग कहते हैं अच्छा, और फिर ठीक है मसाइल होते हैं, हर मुल्क में होंगे, ख़वातीन के एक जैसे ही होंगे, हरासमेंट हो रही होगी कहीं वर्क प्लेस पे, लेकिन जब हम आप जैसी ख़वातीन को देखते हैं तो फिर हमारा दिल चाहता है कि हम दुनिया को ये बताएं कि भाई दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़, दिस इज़ अ पाकिस्तानी वुमन एंड और कमाल है पाकिस्तान। बुरा तो सब नहीं है ना, थोड़ा सा बुरा है उसको बहुत हाईलाइट हो जाता है। लोग जो हैं मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लोग समझना चाहते हैं, लोगों को पता है मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं कि कोई आए दूर दराज इलाकों में। सिर्फ एक शख्स के खड़े होने की और काम करने की देर होती है, फिर उसके बाद सबब बन जाते हैं। जज्बा आपका सच्चा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका मरियम बीबी साहिबा, आपने बल्कि डॉक्टर मरियम बीबी, ताकि सही तरीके से कहा जाए। आपने वक्त दिया, हाँ, हमें भी इंस्पायर किया और हमारे नाजरीन को भी इंस्पायर किया। और जाते जाते आपके लिए मैं आपसे भी बड़ी इंस्पायर हूँ। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखें, हमें बड़ों की दुआएं चाहिए और आप जैसी स्टोरीज हमारे माशरे में आती रहें ताकि दूसरी खवातीन देखकर आपसे सबक सीख सकें। और जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा तोहफा हमारी टीम की तरफ से, फूलों का गुलदस्ता। जैसे आप हमारे माशरे में एक फूलों की महक फैला रही हैं, तो वैसे ही हमारी तरफ से आपके लिए फूलों का गुलदस्ता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।